Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Production Operation Management. My name is Marif Suhail and today we'll talk about competitiveness, strategy and productivity. In our last lecture we talked about competitiveness and we discovered that a number of organizations have failed to deliver and have paid a heavy price just because they could not understand the basic concept of competitiveness. We talked about reasons for their failure, and at the same time we talked about the solutions. We came up with the idea that organizations can attain competitive advantage over their rivals if they employ strategies based on finance, marketing, and operations. We also talked about strategy. We also tried to differentiate between strategy and mission. We defined mission to be the reason of an organization's existence. We talked about strategy as a detailed action plan by which an organization can deploy its human as well as capital resources. We also differentiated between tactics and strategy. Then we talked about some basic examples relating to different types of strategies. Today, our lecture focuses on in-depth analysis of strategy. हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि operations as well as organizational strategy को understand करें. उसको समझने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एक organization, चाहे वो manufacturing side की हो, चाहे वो services side की हो, उसके लिए operation strategy formulate करें. After that, we'll try to cover the concept of productivity. हम न सिर्फ प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, उसके फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करेंगे, बट वील टॉक अबाउट द फैक्टर्स बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव इट्स प्रोडक्टिविटी. Also, we'll try to take up some practical examples from the Pakistani environment. We may include the examples of automobile industry, textile industry, and we'll try to formulate an overall big picture of these three important concepts, which are competitiveness, strategy, and productivity. So in order to start our discussion for operational strategy, we need to first कि operational strategy क्या है और organizational strategy के साथ इसका लिंक किस तरह से बनता है. तो सबसे पहले you should realize कि operational strategy has a lot more to do with the distinctive competencies of an organization. इसका जिक्र हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारी बुनियादी डिस्कशन ही स्ट्रैटेजी के ऊपर है, तो we'll take 1 minute to identify those special characteristics or attributes which give an organization a distinctive characteristic as compared to its competitors. इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले तो प्राइस हम लोग पढ़ चुके हैं. प्राइस से रिलेटेड हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी भी पढ़ी, उसको हमने कॉस्ट लीडरशिप का नाम दिया. इसके साथ साथ हम लोगों ने क्वालिटी का भी जिक्र किया. और जब आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिस्टिंक्टिव क्वालिटी की बात करते हैं तो फौरन बात ये समझ में आती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और सर्विस डिफरेंशिएशन. Then we also talked about time. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लानिंग, चाहे वो एक्टिविटीज या सर्विस की डिलीवरी की प्लानिंग हो या एक ऐसी एक्टिविटी जिसके जरिए वो अपने कंपैटिटर के कंपैटिटिव एडवांटेज को जल्द से जल्द कम कर सकती है, उसका भी अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना चाहें तो दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर द सेम कॉन्सेप्ट. देन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी or the distinctive characteristic of or competency of flexibility to either increase or modify its production or design of the product or the service. And this is very important. We also would come across the ideas of service as well as location as distinctive competencies for an organization. आप
अपने इर्द गिर्द अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल्स या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या स्टील मिल किस जगह पे किस मकसद के लिए इंस्टॉल या इरेक्ट की गई थी, और यहाँ आपको इन दो कॉम्पिटेंसीज यानी सर्विस और लोकेशन के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग का मौका मिलेगा। अगर आप बात इसको मजीद डिटेल में देखना चाहते हैं कि डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज के एग्जाम्पल हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किस तरह से देखते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई आपसे आके कहे कि जी आप बात कर रहे हैं प्राइस की एज अ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी फॉर अ सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे कोई इसका आसान सा एग्जाम्पल बताइए। तो आपके जहन में सबसे पहले पाकिस्तानी पोस्ट सर्विस या पाकिस्तानी पोस्टल सर्विस का नाम आएगा, क्योंकि इसके जरिए आप न सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस का पता चला रहे हैं, बल्कि यू आर इन अ पोजीशन टू डिसाइड के सर्विसेज किस किस्म की प्रोवाइड की जा रही हैं। यानी देयर आर नंबर ऑफ अदर अवेलेबल कंपैटिटर्स इन द सेम फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज विच इज डिलीवरी ऑफ मेल, पार्सल्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसमें जितने भी प्राइवेट कोरियर्स हैं दे माइट बी charging a lot more than the postal service, but the Pakistani postal service has been able to perform its duties diligently for the last 60 years, and in fact most of the schemes or most of the incentives we see through our courier services get their basic origin from the Pakistani postal service. तो ये एक बहुत बड़ी achievement है in terms of a distinctive competency for मेलिंग सर्विस। यानी अगर आप 5 रुपए या 6 रुपए खर्च करके एक डॉक्यूमेंट बुनियादी उसूल पूरे करते हुए किसी एक खास जगह पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके जहन में पाकिस्तानी पोस्टल सर्विस का ही नाम आएगा। देन वी हैव द सेकंड डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी वी नो दैट कि आजकल की मॉडर्न प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स मार्केट कर रही हैं उनके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो उनके प्रीडिसेसर्स यानी उनसे 20 साल पहले 30 साल पहले प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज के मुकाबले में सुपीरियर या क्वालिटी के लिहाज से ज्यादा एनहांस प्रोडक्ट्स हैं। एग्जाम्पल, आज से 30 साल पहले आपको प्लाज्मा एलसीडी टेलीविजन आम मार्केट में अवेलेबल नहीं था। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जिसे एसयूवी व्हीकल कहा जाता है पाकिस्तान में आज से 20-25 साल पहले इजीली अवेलेबल नहीं थी। सिमिलरली आपके पास जो हैंडी कैम्स या मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल है वो प्रोडक्ट्स की आला क्वालिटी ही को रेफर कर रहा है। तो दिस डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी अलोन कैन मेक ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर टारगेट व्हिच इज टू मेक प्रॉफिट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। द थर्ड डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी ऑफ टाइम always talks about that we covered the idea of Pakistani postal service few minutes back। उसमें हमने बात की कि जी आप अगर बुनियादी बेसिक सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो 4 या 5 रुपए के एक लिफाफे के जरिए आपको पाकिस्तानी पोस्टल सर्विस ये गारंटी देती है कि आपका खत आपके रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। और अगर आप उसी सर्विस को मजीद रैपिडली हासिल करना चाहते हैं या क्विक डिलीवरी चाहते हैं तो देयर आर अर्जेंट मेल सर्विसेज या अर्जेंट ओवरनाइट डिलीवरी पैकेजेस काइंड ऑफ सर्विसेज अवेलेबल टू यू। सो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम करती हैं कि जी हम ऑन टाइम डिलीवरी के जरिए अपनी कॉम्पिटेंसी बनाएंगे और वही डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी हमको अपने कंपैटिटर्स के ऊपर एक कंपैटिटिव एज प्रोवाइड करेगी। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट which is flexibility। अब flexibility के जरिए organizations whether they are in the field of providing services or providing products can provide various or variety of products and at the same time they can increase their volume of production या capability to handle a large number of products, a large number of orders। Then there are other examples relating to the concept of services
और जब कभी आप पाकिस्तानी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, द बिगेस्ट एग्जांपल दैट कम्स टू आवर माइंड वुड बी द सर्विस इंडस्ट्री रिलेटेड टू बैंक्स एज वेल एज एयरलाइंस. व्हाई? बिकॉज फॉर द लास्ट 60 years ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एज अ नेशन हम लोगों को इन दो डिपार्टमेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा सुपीरियर सर्विस अवेलेबल होगी. वेदर इट्स एज एन इंडिविजुअल और वेदर इट्स एज अ बिजनेस, हम लोगों को जितनी अच्छी सुपीरियर सर्विसेज इस फील्ड में इन दो साइड से होती है या इंडस्ट्री से होती है, वो शायद हमें और जगहों से नहीं मिल सकी. बट देन अगेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेट अप सम एग्जांपल्स, वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनीवन. एंड फाइनली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी और आपसे एग्जाम्पल का पूछा जाता है और आप कहते हैं कि जी मैं तो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी लोकेशन की बात कर रहा हूं, तो अगेन आई विल टेक द सेम कॉन्सेप्ट कि आप बेशक इंटीरियर ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपको अपनी किसी डेस्टिनेशन की खातिर आइदर जहाज के जरिए आप किसी मेजर टाउन जाना चाहते हैं, तो यू वुड बी अमेज्ड that your airlines has probably made arrangements that there are point of sales or points of booking of your tickets. और उन ट्रैवलिंग एजेंट्स के जरिए आपको मुनासिब वक्त पे मुनासिब कीमत के ऊपर टिकट अवेलेबल होता है. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर योर बैंक्स एज वेल. आपके जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस के अंडर इतनी पॉइंट्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल कर चुके हैं आवाम के लिए कि अगर आप किसी छोटे से छोटे शहर जाना चाहें या कस्बे में आपको जाने का इत्तेफाक हो, तो यू विल बी अमेज्ड दैट देयर आर अवेलेबल सर्विसेज जहां पे आप बिल जमा करा सकते हैं या आप अपने बैंक के जरिए किसी को वायर कर सकते हैं, आप किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट, द 6 distinctive competencies in which an organization can achieve competitive advantage or enjoy a competitive edge over its rivals would be price, quality, time, flexibility, service and location. अब जनाब बात हो सकती है ऑपरेशन स्ट्रेटजी की. हमने अपनी तमहीद मुकम्मल कर ली. वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि हम लोगों को ऑपरेशन स्ट्रेटजी डिफाइन करने के साथ साथ ऑपरेशन स्ट्रेटजी को लिंक करना है विद योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी. For that particular reason, we defined those distinctive competencies and took some examples. So, Janab, what is operational strategy? Operational strategy, if defined, is normally said to be the approach consistent with the organization's strategy. That is, of course, the guiding principle for the organization's existence. यानी ऐसी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को हम ऑपरेशनल स्ट्रेटजी कहेंगे जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी में होंगे. यानी देयर इज अ क्लियर कट पैटर्न बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एज वेल एज ऑपरेशनल स्ट्रेटजी. अब थोड़ी सी बात होगी माइक्रो और मैक्रो लेवल की. Organization, you already know in your first lecture, that consists of different divisions or departments. उसमें आपके ऑपरेशन साइड जो हम लोगों के रेफरेंस है सेंट्रल लोकेशन में मौजूद होती है और मार्केटिंग एज वेल एज फाइनेंस डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स भी मौजूद होते हैं. सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये 3 डिपार्टमेंट या डिविजन या फंक्शंस मौजूद होंगे, उसको जहन में रख के हम अपनी बहस को थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं. What are we trying to say over here? That our organizational strategy should be reflected in our operational strategy. Agreed? So what is your organizational strategy or what is your operational strategy? पहली बात तो ये है कि organizational strategy is formulated by the senior management. यानी इसमें general managers and above या वाइस प्रेसिडेंट्स या प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे. इट माइट नॉट बी कैरिंग अ डिटेल्ड अप्रोच. इट माइट बी हैविंग सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट अटैच्ड टू इट. यानी इट्स स्कोप वुड बी ब्रॉडर बट इट वुड बी कैरिंग लेस डिटेल्स. इसके साथ साथ आपको यह भी जहन में रखना होगा
कि whenever management is making a decision, it's not going to be for tomorrow, it's going to be for a horizon which is very long. It would probably be like 5 to 10 years. और ये बड़ा important concept है. And then again, organizational strategy would carve out an overall big picture for the organization. यानी उनकी जो भी बात होगी वो किसी ना किसी तरीके से तमाम की तमाम फंक्शनल डिविजन्स को रिप्रेजेंट करेगी. ये नहीं होगा कि वो ऐसी बात करें जो सिर्फ मार्केटिंग पर्सनल या मार्केटिंग डिवीजन के लोगों को फायदा पहुंचाए या मार्केटिंग प्लान्स ही के बारे में बात करें. नो, इट्स गोइंग टू कवर ऑल 3 इंपॉर्टेंट एरियाज. और चूंकि अब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द 21st सेंचुरी, पीपल ऑफन से कि जी आप इसमें आईटी डिवीजन को भी शामिल कीजिए. जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर क्लैरिटी, वी से दैट आईटी इज अ सपोर्ट फंक्शन एंड इट एग्जिस्ट्स जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी विद इन ऑल द 3 डिविजन्स. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी को आपने कहा कि जी इट्स ब्रॉडर इन स्कोप, कैरीज लेस, सो यू कंडक्ट योर डे रूटीन. For this particular reason, bring in the topic of operational strategy. Operational strategy is more specific in scope, or you can say it's more narrow, but it is more detailed. Why is it more detailed? Because एक तो यही वजह है कि it covers a lesser period of time. We are talking about 1 year at the most, or more importantly, हम लोग इसमें कल आने वाले कल की बात कर रहे होते हैं. यानी reflecting that concept कि रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज को हम कल किस तरह से परफॉर्म करना चाहेंगे एट द सेक ऑफ इंश्योरिंग कि हमारा आज का दिन भी ट्रबल फ्री गुजरा. सो पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन स्ट्रेटजी वुड बी बेस्ड ऑन अ वेरी स्पेसिफिक स्कोप एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी रिफ्लेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, और इन अदर वर्ड्स इट शुड बी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी. It is always prepared by the middle management, or you can say that the frontline supervision is involved in it. अब इसमें थोड़ी सी डिवीजन आ जाती है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, they do not incorporate the frontline workers' inputs, whereas the organizations which are working on the Japanese concept of management, they incorporate the worker or the frontline workers feedback as well as input. लेकिन ये distinction अब बहुत मध्यम हो चुका है. You will come across companies working in the United States of America, managed and owned by Americans, but following the Japanese concept of management. So just for the sake of our learning and knowledge, we should be able to identify कि जी किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को डिस्टिंक्शन के जरिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अच्छा, ये तो बात हो गई. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन द प्रीवियस डेकेड्स रिफ्लेक्टेड अ लॉट मोर टुवर्ड्स दिस आइडिया. हमने बात की थी कि जी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को लोग पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, एंड दे वर मोर फोकस्ड ऑन द मार्केटिंग साइड. और मार्केटिंग या फाइनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से दे निग्लेक्टेड दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशनल स्ट्रेटजी. लेकिन थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि एजुकेशन आई, अवेयरनेस आई, और उस अवेयरनेस के बाद ऑर्गेनाइजेशंस हैव नाउ स्टार्टेड टू टॉक अबाउट ऑपरेशनल स्ट्रेटजी एज देयर गाइडिंग प्रिंसिपल. यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है कि जब कभी आप ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को डिजाइन करें, you should make it a point that it should be designed and implemented in a way that it should not hamper or obstruct the organization's overall big objective. ऐसी operational strategy या operational plan of action को कभी किसी organization में पसंद नहीं किया जाएगा जहां पे एक डिपार्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो दूसरे डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी से इन सिंक ना हो. यानी सिंक्रोनाइज स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की गई. अब कुछ डू नॉट्स की भी बात हो जाए.
पहले तो हमने कह ही दिया कि ऑपरेशनल स्ट्रेटजी शुड नॉट बी इन कंट्रास्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी. प्लस in order to improve the performance of the company, a lot of organizations have faced the dilemma जिसमें पता ये चलता है कि एक डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स की प्रोडक्टिविटी को लोअर कर रहा है. इस स्ट्रेटजी को आप सब ऑप्टिमाइजेशन का नाम भी देते हैं. यानी यू आर ऑप्टिमाइजिंग द डिवीजन और द डिपार्टमेंट बट नॉट द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो सब ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो लोग पैसे पुश डाल देते हैं. दे एंड अप इमेजिनिंग और थिंकिंग दैट दिस आइडिया इज प्रोबेबली मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशनल आइडिया. या अक्सर ये भी कहा जाता है दैट द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम फायदा पहुंचा रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली दिस is not the case. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो it consists of different divisions which could be represented with the help of a chain. आप जंजीर का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जंजीर की जो स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है जंजीर के सबसे कमजोर एलिमेंट के ऊपर. तो अगर आप एक डिवीजन को एक जंजीर की कड़ी या चेन की लिंक कहते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है पूरी की पूरी, या उसकी जो वीकनेस है वो पूरी की पूरी चेन की स्ट्रेंथ के बराबर होगी. अगर एक जगह को आपने निग्लेक्ट किया या उसको पसे पुश डाला या उसको नजरअंदाज किया तो चांसेस एग्जिस्ट दैट योर ऑर्गेनाइजेशन वुड एक्सपीरियंस दैट शॉर्टफॉल. किस तरह से? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. फॉर अ सेकंड इमेजिन दैट वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज. अगर बैंकिंग सर्विसेज में आप कह देते हैं कि जी वी गॉट द स्टेट ऑफ आर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑपरेशनल साइड, और हम लोग 5 से 15 सेकेंड के अंदर अपने कस्टमर को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, तो इट इज डेफिनेटली अ गुड अचीवमेंट. बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू हैव नॉट प्रॉपरली मार्केटेड योरसेल्फ अगेंस्ट योर कंपेटिटर्स, तो जो कस्टमर्स हैं वो अगर आपके बैंक का नाम ही नहीं जानते या उनकी इस डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी को पहचानते नहीं है बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ फोकस टुवर्ड्स द मार्केटिंग साइड ऑफ योर एबिलिटी, सो व्हाट विल हैपन? दे वुड सिंपली गो टू योर कंपेटिटर. एंड अनफॉर्चुनेटली वी in the past have experienced such examples and such cases. We have come across such cases. लेकिन this particular working knowledge of operation management would equip you with such an ability कि आप इन mistakes को ना सिर्फ repeat होने से रोकेंगे बल्कि आप avoid कराएंगे. Not only in one frame of reference, चाहे वो production side हो, चाहे वो operation side हो, चाहे वो services side हो. You should be able to do that. हम लोग बात जब करते हैं ऑपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो वी कैन सिंपली से दैट वी कैन रिप्रेजेंट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस. अब वो प्रोसेस क्या है? लेट्स लुक एट द डायग्राम. बात इतनी सी है कि हमने कहा कि जी कस्टमर नीड आपने आइडेंटिफाई की, या लेट्स कॉल इट लाइक इन स्टेप 1 यू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड. उसके बाद कस्टमर नीड ये सामने आ रही है कि वी नीड मोर प्रोडक्ट. अब अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आए तो जो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होगी वो यकीनन ये होगी कि वी शुड इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन साइज. वुड यू बाय दिस कॉन्सेप्ट? या आप इस आइडिया से मुत्तफिक होंगे कि जी अगर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई है कस्टमर की कि उसको ज्यादा प्रोडक्ट दरकार है, तो स्टेप 2 पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अगर आप ये डिफाइन कर दें कि हम लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन साइज को बढ़ाना होगा, तो शायद ये बात इतनी मुनासिब नहीं लगती. लेकिन इसके बरक्स अगर आप ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को डिफाइन करें तो यू कैन से दैट वी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी. Now this is more realistic, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि जी ऑर्गेनाइजेशन साइज बढ़ाना है तो इसको
मुख्तलिफ तरह से लोग मुख्तलिफ तरीके से या जाविये से देखेंगे. अ फाइनेंस मैनेजर वुड से ओके वी नीड मोर फंडिंग. एक मार्केटिंग मैनेजर समझेंगे कि ओके वी नीड टू इंक्रीज आवर sales workforce. And an operations manager would probably say, okay, we can go and buy some new machines and we can increase the organization size. अब हर कोई अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहा है, बट जब आप उसको माइक्रो लेवल पे लेके आएंगे तो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी. नाउ फाइनली when you are making your when you are trying to define your operation strategy, what you are trying to do is that you are trying to arrive on decisions as far as your production and infrastructure is concerned. So पता ये चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात की गई थी, जो हम लोगों को थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट या वेग लग रही थी कि जी हमने ऑर्गेनाइजेशन साइज बढ़ाना है, it actually gets translated into a tangible concept of building a new factory. तब आपने देखा ये लिंक किस तरह से आपको अवेलेबल है बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एज वेल एज योर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी. लेट्स टेक अनदर conceptual example as far as strategy या design of strategy is concerned. We talked about the organization having 3 divisions. अब उसी कॉन्सेप्ट से बात आगे चल रही है. बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप कहेंगे कि जी हमने जी स्ट्रेटजी को मैप करना, तो स्ट्रेटजी मैप होते वक्त जो आपकी फाइनेंशियल डिवीजन होगी या फाइनेंस डिवीजन होगी वो अपना पर्सपेक्टिव सामने रखेगी. द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव वुड बी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रेटजी मैप लीडिंग टू अ डिजायर्ड रिजल्ट, दैट वुड बी टू इम्प्रूव द शेयर होल्डर्स वैल्यू या वेल्थ. यानी अगर एक इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की तो आप उसको अच्छा रिटर्न दीजिए. ये तो जी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो गया. कस्टमर पर्सपेक्टिव विच इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड बाय द मार्केटिंग साइड इज दैट वी नीड टू set up a more concrete, solid customer relationship. And for this, we need to value the customer's feedback or customer's proposition. इसके साथ साथ तीसरी division operation, which always reflects the internal perspective, would say that we need to not only build but increase and achieve some kind of distinctive competency that can help us increase our organization's capability. इसके साथ साथ we can also say that there's an additional advantage attached to it, which actually is that there is a learning and growth perspective. In your future lectures, you will talk about learning curves. This idea is represented in the future lectures, and the end result would be that you have a motivated and prepared workforce. यानी बात strategy design की जो थी वो इस तरह से start हुई that a judicious design should try to cover or pay due attention to all the 3 important divisions perspective. यानी finance side, marketing side, operations side, इन तीनों का जो collection या collective action होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए that the organization's learning and growth perspective should improve. Why is it so? Simple. A motivated and prepared workforce leads to a lesser number of mistakes. और आपकी जब mistakes कम होती हैं तो number of services या number of products manufactured during a unit time improves. We are now in a position to formulate a strategy. How can we do that? Simple. First of all, you should be able to identify or define your organization's distinctive competencies. यानी with respect to price, quality, जो भी dimensions हम पहले पढ़ चुके हैं उनके जरिए आप अपनी organizations की distinctive competency define कर दीजिए. Step number 2, you can formulate your strategy if you are able to scan your environment. Environment scanning से हम क्या मुराद लेते हैं? Environmental scanning is the study of your industry, its rules, the environment in which your industry operates. यानी आपकी इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी
को कितनी हद तक इस्तेमाल कर रही है, टेक्नोलॉजी से कितनी दूर है, इस किस्म के फैक्टर्स को आप मद्देनजर रख के एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, सो दैट यू आर इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई योर कंपेटिटर्स डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। यानी पहले स्टेप में आपने अपनी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज डिफाइन की, तो दूसरे स्टेप में यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज ऑफ योर competitor. Third step would be carrying out the SWOT analysis or SWOT analysis. SWOT analysis refers to strength, weakness, opportunities and threats. I would not go into detail because every student of management is aware of this, and we always conduct SWOT or SWOT analysis before we take up any assignment. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हर फर्द को किसी भी लेवल पर काम कर रहा हो उसको अपने राइवल्स के बारे में और अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बता दे। तो यही स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के कॉन्सेप्ट को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट योर स्ट्रेटजी। देन एज एन एडेड एक्सटेंशन इन स्टेप 4 यू वुड आइडेंटिफाई what are order qualifiers and what are order winners. Order qualifiers actually represent करते हैं ऐसी characteristics को जो customers की जहन में मौजूद होती हैं और उनकी ही तलाश में वो आपके पास एक product या service हासिल करने के लिए आता है। But the distinction between order qualifiers and order winners, चाहे वो manufacturing side हो चाहे वो services side हो, is simple. Order qualifiers are those bare minimum requirement और characteristics जिनके जरिए कस्टमर उस सर्विस की तरफ माइल होता है या उस प्रोडक्ट को खरीदने की तरफ इंटरेस्ट शो करता है। एंड order winners, as the name reflects, would always refer to those distinctive characteristics, वो चंद खुसूसियात, वो चंद स्पेशल एट्रीब्यूट्स जिनकी वजह से जो आपके लिए कस्टमर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा कि ठीक है, मैं क्वालिटी अच्छी हासिल करने के लिए 10 या 15 हजार रुपए ज्यादा दे दूंगा, बट आई वुड बाय दिस प्रोडक्ट और सर्विस बिकॉज दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज अनमैच्ड। तो वो पर्टिकुलर अनमैच्ड कैरेक्टरिस्टिक को हम ऑर्डर विनर का नाम देते हैं। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी दैट यू शुड बी एबल टू डिफाइन और you should be able to design your strategy process. How can you do that? You can do that by creating a framework for your manufacturing or your service strategy. अब ये याद रख लीजिएगा कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आ जाएगा एज कम्पेयर टू सर्विसेज। और वो डिस्टिंक्शन क्या है? डिस्टिंक्शन ये है कि स्ट्रेटजी डिजाइन प्रोसेस स्पेसिफिकली फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग organization would incorporate a framework for manufacturing strategy, and a strategy design process for any organization that is into providing services would incorporate a service strategy capability or capacity capability concept. And finally, your strategy formulation would require the idea of productivity. अब जहन में हमने ये बात रखनी है कि whenever we are talking about strategy, people often tend to ignore the idea behind quality. They try to have a trade-off between price and quality. आप रोज खबरें पढ़ते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स में शुमार किए जाते हैं, बट देयर इज वन मिसिंग एलिमेंट जिसकी वजह से हम लोगों की जो एक्सपोर्ट्स की तादाद है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी जो हम लोग डिजायर करते हैं या जो हमारी ख्वाहिश है कि हम अचीव कर सकें। बावजूद इसके कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन वर्कर्स, बेहतरीन वर्कफोर्स के साथ साथ बेहतरीन मैनेजर्स भी अवेलेबल। द ओनली इशू इज दैट वी टेंड टू क्रिएट एन अननेसेसरी ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर कहते हैं कि जी मैं प्राइस कम कर रहा हूं अपने प्रोडक्ट की, लेट्स से आई एम एक्सपोर्टिंग अ लेदर जैकेट फॉर ₹5,000 एंड
आई से दैट आई नीड टू ब्रिंग इट डाउन टू 4,000 रुपीज, तो मैं किस तरह से ऐसे करूं कि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मुतासर ना हो और जो मेरी प्राइस है वो नीचे आ जाए। तो आम तौर पे देखा यह गया कि लोग क्वालिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है विच इज क्वालिटी एट द सोर्स, उसको निगलेक्ट करके कहते हैं कि जी हम प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर देंगे, यानी फाइनल प्रोडक्ट डिस्पैच होने से पहले फाइनल स्टेज के ऊपर उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट कर देंगे। होता क्या है वहां पे? होता सिर्फ इतना से है कि जो आपने इनिशियल स्टेजेस की क्वालिटी इंस्पेक्शन बंद की है, वो आखिरी स्टेज पे कवर करने में आपको एक के मुकाबले में 10 टाइम्स मोर रिपेयरिंग कॉस्ट देना पड़ता है। सो दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू बैलेंस बिटवीन योर कॉस्ट एंड क्वालिटी, as well as try to create a balance between flexibility and delivery. ये बहुत important concept. We now take some time to develop a manufacturing or service strategy. पहली बात तो यही है कि there are 4 steps involved in it. And we'll try to achieve the primary objective of developing a strategy which is practical for both manufacturing side as well as services side. So step number 1 would be we need to segment the market according to the product and service. क्या मतलब है इसका? If I'm a customer or if I'm a potential customer interested in buying a sedan car or an automobile with 4 doors and normal classical concept की बात कर रहा हूं, तो हम लोगों को इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट जो डिफाइन की जा रही है उसमें वो लोग इन्वॉल्व या वो लोग शामिल ना किए जाएं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सेडान कार खरीदने में। लाइक इफ मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड इन बाइंग एन एसयूवी, अ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और अ जीप, आप उनको अपनी टारगेट मार्केट में शामिल ना करें, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि आपने अपनी मार्केट सेगमेंटेशन गलत तरीके से की और आप गलत नंबर्स के साथ, गलत प्रोजेक्शंस के साथ एक गलत इनपुट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। यानी कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स आपके पास सिर्फ 5,000 हैं, लेकिन अगर आप उनमें ऐसे लोग शामिल कर रहे हैं जो आपके उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो यू विल कम अप विद अ फिगर एज हाई एज 10,000। सो यू कैन इमेजिन कि इससे कितनी रिसोर्सेज का ज़िया हो रहा है। नंबर 2 स्टेप नंबर 2 फॉर developing a manufacturing or service strategy. Step number 2 is identify product, services, requirement, demands, and at the same time you should be able to focus on your profit margin. अब बात हो रही थी कुछ देर पहले that we have information technology built into different organizations. So किसी भी organization के marketing division में भी information technology available है। Good number of organizations in Pakistan have a very strong and effective marketing information system working for them. And this important department collects data and information and projects a number which is probably more judicious to the operation side. कि जनाब हमें अगस्त के महीने के लिए 10,000 सुर्ख रंग की गाड़ियां बनानी हैं, तो हमारे ऑपरेशन साइट के पास 10,000 गाड़ी बनाने के लिए 10,000 गैलन या 10,000 पेंट के डिब्बे होने चाहिए। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सो व्हाट वुड बी द थर्ड स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग और डेवलपिंग अ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस स्ट्रेटजी? For each segmented market, you should be able to identify the order qualifiers as well as the order winners. और अगेन हमें पता है कि ऑर्डर क्वालिफायर्स जो होंगे वो सिर्फ कंपटीशन में शामिल होंगे, ऑर्डर्स जो विन करेंगे वही एक्चुअल विनर्स होंगे और वही सिर्फ कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की सलाहियत रखते हैं। एंड अगेन दिस वुड इंक्रीज द रेवेन्यू एंड इम्प्रूव द ऑपरेशंस। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज that you should be able to convert your order winners into specific performance. देखिए ये जो फाइनल पॉइंट है इसको जरा इस तवज्जो पे आप देखिए या इस डायमेंशन से देखिए कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमेशा
हेल्प करती है. और जापानीज मैनेजमेंट में इस पर्टिकुलर एबिलिटी को काइजन का नाम दे दिया गया है. और काइजन के जरिए जापानीज automobiles, electronics, and even banks, they have captured the markets in Europe as well as the United States of America and of course our own country, beloved Pakistan. तो ये आप देख लीजिए कि 4 स्टेप्स आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पूरे करने होंगे in order to formulate a workable, practical manufacturing or service strategy, which are: number 1, you should be able to segment the market. Number 2, you should be able to identify the product and service requirements. And step number 3 reflects the qualification of order qualifiers as well as order winners. And finally, you should be able to convert those order winners into specific requirements. हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी एनवायरमेंटल स्कैनिंग की. एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो 6 हैं. पहला स्टेप या पहला कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस का. आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिस मुल्क में आप काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाह रहे हैं वहां पे माइक्रो और मैक्रो लेवल्स क्या हैं. नंबर 2, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कंडीशंस. Political conditions के साथ साथ you should be able to understand the workings of the legal system. यानी you are actually identifying 3 dimensions initially. First of all, you're talking about your economic conditions, which captures micro and macro levels. Number 2 is the political conditions, जिसमें हमारी अगर आप एक और स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो माइकल पोर्टर साहब ने एक काम किया हुआ है एंड ही कॉल्स इट PEST और पेस्ट एनालिसिस, जिसके जरिए आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को 5 बुनियादी चीजों के अंदर टेकअप कर सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट बिकॉज इट इज एन ऑक्सिलरी कंपोनेंट टू आवर डिस्कशन टुडे एंड वी मे टेक इट अप इन आवर फ्यूचर डिस्कशंस. लीगल एनवायरनमेंट की बात होती है तो वी शुड बी अवेयर कि हम लोगों ने हर हाल में अपने इन्वेस्टर को, अपने कस्टमर को प्रोटेक्शन देनी है. फॉर दिस वी शुड हैव प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कंट्री. यानी अगर कोई साहब अमेरिका से पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द जो बाउंड्री लाइन खींची जाएगी उसमें रेगुलेशंस क्या हैं और उसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं. लकीली इन आवर कंट्री वी हैव गॉट अ लॉट मोर अवेलेबल इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. और ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी आपको अगर मैं कहूँ कि आपकी जो रेगुलेशंस और आपकी जो इंडिकेटर्स हैं दे आर फार मोर हेल्पफुल टू एन इन्वेस्टर राइट नाउ देन इवन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Another important key concept when we talk about external factors would be the use of technology. जब कभी आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो we would always try to compare the technology of our organization with that of the competitor. And for this you can carry out a detailed or an abstract gap analysis. Finally, you have the important concept of market. Attached with it is another important concept known as competition. पाकिस्तान में भी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैज टू दिस डे ट्राइड टू जुडिशियसली इन्फोर्स दैट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन और एटलीस्ट देयर इज नो मोनोपोली. एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ फ्री मार्केट्स. ये तो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए. क्विकली वी कैन टेक अप a minute or two to identify the key internal factors. Key internal factors में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? You should be able to identify your human resources. Number 2, you should be able to identify your equipment and facilities. Number 3, you should be able to identify your customers. You should be able to identify and project your products and services. And then you should be able to
improve your technology, and then again you should be able to identify your suppliers. Suppliers are very important ingredients as far as products and operation management is concerned. Why? A number of organizations, even in Pakistan, have developed their suppliers or vendors in a way that they have become a part of the organization. And that concept again comes to us in the form of supply chain management, जो हमारे सेमेस्टर के इख्तिताम के करीब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. हम लोगों ने कुछ देर पहले सर्विस स्ट्रेटजी एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन किया और देखा कि किस तरह से आप उसको डिजाइन भी कर सकते हैं और फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं. A small point of reference being that we as students of operation management and future operations manager should be able to identify the process, the system or the service vision for any organization. चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हो, चाहे आप सर्विसेज साइड पे हो, you should be able to identify the service vision. And for this you should be in command to define the concept, the operating strategy as well as the delivery of the product or the services. और हमने ये भी देखा कि ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं या कौन कौन सी होती हैं जो हमें इस चीज में हेल्प आउट करती हैं. They are 2 in number, which are cost leadership and differentiation. Traditional strategies के अलावा हम लोगों के पास contemporary strategies भी available हैं. And for this, the 2 important concepts are quality-based strategies and time-based strategies. As far as quality-based strategy is concerned, we are aware कि हम लोगों का basic guiding principle ये है कि quality is always at the source. And at the same time, we are trying to focus or maintain a focus on improving the quality of our product as well as the service of our organization. यानी चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हो, चाहे आप सर्विसेज साइड पे हो, your delivered or your promised delivered product or service should be able to reflect quality. Then there is another important concept of time-based strategy. Time-based strategy always focuses on reduction of time required to accomplish tasks. अब ये task जो है वो planning से लेके deliverable to the customer तक, यानी customer delivery तक मौजूद होना चाहिए. There are 6 time-based strategies which we follow. Number 1 is planning time. Number 2 is product or service design time. Number 3 is processing time. Number 4 is changeover time. Number 5 is delivery time. And number 6 is response or the time required to handle your complaints or customers' feedback. In modern operations management, organizations have registered a reduction in time by employing these 6 important time-based strategies. इसमें अगर आप बात करते हैं नंबर 1 स्ट्रेटेजी की, which is planning time, it always takes into account that आपका जो planning time है या जो thinking time है, it should be in a way that you should be able to adopt new technologies, or you should be able to improve your existing facility, or more importantly, you should be able to take care of a competitive threat of your rival. If you are able to do that, your organization improves its productivity. Similarly, the second important concept of product service design strategy is the time you require to develop or market new or redesign products or services. यानी आप ये कोशिश करते हैं कि अगर आपका एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में मौजूद है और आप समझते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग इट, यू शुड बी एबल टू इम्प्रूव दैट प्रोडक्ट्स और सर्विस क्वालिटी इन दैट पर्टिकुलर टाइम. और इस स्ट्रेटजी को हमने प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन स्ट्रेटजी दे दी. द थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप इज द प्रोसेसिंग टाइम. यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड
सर्विसेज और गुड्स इन अ वे कि आपका जो राइवल या जो कंपेटिटर है वो फील करे कि दिस इज द टाइम जहां पे उसे मेहनत करनी है. तो दैट मीन्स यू हैव काइंड ऑफ अचीव्ड अ स्ट्रेटजी in which you have improved your processing time. And this is probably one of the more critical strategies which are gaining more popularity day by day. The fourth important concept relating to time-based strategies are, or what we have been seeing in Pakistan, is the changeover time. What is changeover time? Changeover time is the time needed to change from one type of product or service to another. यानी अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं तो आप 3 से 4 साल के बाद नया मॉडल लेके आते हैं, तो पहले और नए मॉडल के दरमियान जो टाइम होगा उसको आप चेंज ओवर टाइम कहेंगे. सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं या इंश्योरेंस सर्विसेज में हैं एंड यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ हेल्थ सर्विस अटैच्ड टू इट, यू वुड टेक सम टाइम टू implement the new strategy, and that time would be known as changeover time. There is another important concept which is known as delivery time, which is the time you would require to fill your orders. यानी ऑटोमोबाइल आपने अपने मार्केटिंग साइट से एक ऑर्डर रिसीव किया कि ये नंबर ऑफ बुकिंग्स हमारे पास 5000 हैं, और वो 5000 बुकिंग्स को जब तक से आप कस्टमर तक एक मुकम्मल कार की सूरत में पहुंचा नहीं देते, would always be there. So the delivery time would reflect the time to complete your order. Another important concept, which is probably the most important of all, is the response time for complaints. Again, organizations which are agile in nature or which have the agility or the ability to improve their product or service based on customer feedback would ideally be having a very small time period attached to it as far as response time is concerned. So we call that time as response time when you as an organization are able to improve the model or service features according to the customer's requirements, as well as you are trying to improve your employees' working condition. Dear students, I would like to thank you for your attentive participation. Our important discussion of productivity, competitiveness, and strategies require another lecture to complete. We have covered in detail the two important concepts of competitiveness and strategy. And hopefully in our next lecture, we would be able to cover the important concept of productivity. And what we intend to do in our next lecture would be that we would identify productivity. We would try to cover those performance factors which reflect poor productivity on part of the organization. And then we'll try to solve some practical examples from the Pakistani industry side. And we'll use the data as available to us from public sources. I thank you for being here to attend this lecture. Thank you very much.